Welcome to the Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center. In 2004, a national level institute AMGITA has been started in the field of engineering and technology as per guidelines of All India Council for Technical Education AICTE New Delhi. AMGITA is approved by AICTE New Delhi, Gujarat State and affiliated to Gujarat Technological University Ahmedabad, which is also known as GTU. Our goal is to be an institute of generative ideas so that we remain relevant to our society. The AMGITA has always been an organization on move with continuous effort on improving its processes and to maintain its relevance to the Indian science scenario, with adding new programs in its programmatic portfolio. We strongly believe in overall development of students, so for that we provide them a different platform like state level tech fest, project fair, different sports activity, which helps students to teach teamwork and problem solving skills to get physical health benefits, boost self esteem, and reduce pressure and stress for prove their skills in distinct area. Welcome to the lecture of electrical measurements and measuring instruments. Myself, Professor Gaurang C. Patel from Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, Navsari. So, student, we are going to discuss today regarding the chapter number 4, that is measurement of RNC, and we will discuss a very important topic, that is the Anderson Bridge. It is asked so many times in examination. So whenever you prepare for the examination, please consider prepare this question carefully. So we will begin with the explanation of Anderson Bridge now. Okay, students. So today we will going to discuss about the Anderson's Bridge. So today what we are going to discuss, that is what is the use of Anderson Bridge, and we will see the balance circuit of Anderson Bridge and the phasor diagram, how to draw the phasor diagram of Anderson Bridge, and what are the advantages of the in the Anderson's bridge. Okay, so you can see over here this question has been asked so many times in GTU examination. So whenever you prepare for the examination, must be considered this question can be asked in this time as well. Okay, so we will start with the explanation. That is, the Anderson bridge is also a modification of Maxwell's inductance capacitance bridge. जो हमने मैक्सवेल ब्रिज का लास्ट लेक्चर में देखा था कि भाई मैक्सवेल ब्रिज कैसे वर्क करता है. सो इट इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ Maxwell's inductance capacitance bridge. Okay, so the method is one of the most common method used for the precise measurement of self inductance over a very wide range. So these method are used for the precise measurement of the self inductance. Okay, अगर आपको self inductance का precise measurement करना है तो you can go through the Anderson's bridge. Okay, now in this method the self inductance is determined in terms of standard capacitor, and the circuit diagram and phasor diagram of Anderson bridge is shown over here. So over here you have to determine this standard with the this standard capacitance. Okay, so you can see over here this is the balance circuit for the your Anderson bridge. In this circuit you can see there are four arms are given over here, that is A, B, then B, C, C, D and D, A. So several components are connected. In between A and B there is R1 and L1, and there is a variable resistance R1. Okay, in between B and C branch there is a connection of R3 and I1 is flowing through the R3, and in between C and D branch there is connection of R4 and there is an I4 is flowing through that. Okay, so and in between A and D there is a resistance R2 is connected and I2 current is flowing through that. So current is divided over here from that node A in I1 and I2 form, and from over here you can consider over here that is I3 as well and I4 as well, or you can consider over here same current I1 and I2 also you can consider, but over here we are considering there is I1, I2, I3 and R4, four currents are there. So for finding out the voltage there is four parts we are divided. There is E1, so this group that will give you the
voltage E1, then it is E2, this is E3, and this is E4. So that's how this E1, E2, E3 and E4 are divided. So we will see how the equations come into the picture. So सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये जो सब टर्म्स है R1, L1, I1, R3, R4, सो उनको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द L1, दैट इज अननोन सेल्फ इंडक्टेंस. ओके, so over here you can see this is the L1, that is the unknown self inductance. And our Anderson bridge, that is what is the aim of the Anderson bridge, that is the measurement of self inductance over a very wide range. Okay, so हमें ये सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ का मेजर करना है, तो उसके लिए हमारे पास L1 क्या है, that is the unknown self inductance. This is the L1, that is the unknown self inductance. Okay, नाउ फॉर R1, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस L1. तो हमने यहाँ पे ए और बी ब्रांच में जो कनेक्ट किया हुआ है इंडक्टेंस L1, तो R1 उसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा. ओके, एंड स्मॉल R1 भी यहाँ पे दिया गया है. तो ये स्मॉल R1 क्या है, तो कि भाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद L1. तो ये जो रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड इन सीरीज विद L1, वो आपका ये स्मॉल R1 है. ओके, नाउ R, small r, R2, R3, R4, that is the non-inductive resistance. ये सारे जो resistance है R2, R3, R4 और ये वेरिएबल में जो दिया गया है R1, वो सारे जो है that is the नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस. और फाइनली आपका जो C है that is the fixed standard capacitor. Okay, so आपका C क्या है, fixed standard capacitor. For now we will see how we can balance this bridge. So at the balance condition, what we have to do, that is I1 is equal to I3 and I2 is equal to IC plus I4. Now you can see what is I1 is equal to I3, that means I1 is equal to I3, that means you can see over here that is the I1 and this is the current I3. तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो उतना ही करंट ये I3 में भी फ्लो हो रहा है. यहाँ पे I1 कंसिडर किया लिखा है, लेकिन दैट इज यू कैन कंसिडर also I3 because it is a voltage E3 department, so you can consider in place of I1 that is an I3. so इस ब्रांच में जो करंट फ्लो रहा है उतना ही करंट इस ब्रांच में भी फ्लो हो रहा है. ओके, now another thing is given, that is I2 is equal to IC plus I4. so I2 कहाँ पे है भाई अपना, I2 यहाँ पे दे रखा है. ठीक है, ये रहा I2. ओके, so I2 कितना रहेगा आपका IC, that is your, this is IC, this is the your कैपेसिटिव करंट IC प्लस आपका ये जो स्मॉल r यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस दिया गया है वो है. ओके, सो ये रहा आपका स्मॉल r, तो ये I2 कितना रहेगा, IC प्लस I4. ओके, सो ये रहा आपका IC प्लस I4, दो पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है, तो आपका I2 दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक तो ये IC, ओके, जो ये इस ब्रांच से फ्लो हो रहा है, और दूसरा एक I4. सो आपका I2 कितना होगा, IC प्लस I4. ओके, ओके, देन नेक्स्ट दूसरा क्या हमें दिया गया है कि भाई फॉर द बैलेंस इक्वेशन, अब हमारे पास I1 तो कितना है वो हमको पता चल गया. व्हाट इज वैल्यू ऑफ I1, दैट इज वैल्यू ऑफ I1, दैट इज I1 इज इक्वल टू I3. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2 ओवर हियर, so value of I2 that is equal to IC plus I4, because our two currents are divided in between these two paths, so IT is equal to IC plus I4. okay, now you can see for the balance equation, सबसे पहले हम क्या consider करेंगे, we will consider the for loop BCEB. okay, so for balance equation for loop BCEB over here, for loop BCEB, this is the loop BCEB. तो सबसे पहले हमने ये लूप को कंसिडर किया. तो अब भाई इस लूप में कौन कौन से डिवाइसेस आ रहे हैं, तो इस लूप में डिवाइसेस आ रहे हैं, अपना R3 आ रहा है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है I1 और यू कैन कंसिडर I3. दूसरा आपका ये कैपेसिटर आ रहा है और उसमें IC करंट फ्लो हो रहा है. ओके, तो इस लूप के लिए BCEB, इस लूप के लिए हमने इक्वेशन क्या फॉर्म किया है, फॉर लूप BCEB I1 into R3 is equal to IC into 1 upon j omega C. Now ये कैसे आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल I1 into R3,
बिकॉज ये रहा आपका I1 R3 में फ्लो हो रहा है, तो आप ये वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा इसके लिए I1 इंटू R3 वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो I1 इंटू R3 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, IC इंटू 1/j⍵c। तो फिर आप जैसे ही ये करंट यहाँ से फ्लो होगा कैपेसिटर C में से, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, IC इंटू 1/j⍵c इतना, C जितना। तो जितना ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये इस ब्रांच में I1 इंटू R3 B2C में, उतना ही इज इक्वल टू यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ओके, फॉर द बैलेंस कंडीशन, ओके। तभी तो ये बैलेंस कंडीशन मिलेगी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिटेक्टर डी में, ओके। तो ये सबसे पहले हमने लूप BCEB के लिए फॉर्म किया है, I1 इंटू R3 इज इक्वल टू IC इंटू 1/j⍵c। नाउ फर्दर if you solve this equation or if you reduce this equation, now हमने IC को यहाँ पे ले लिया है, IC के फॉर्म में अगर ये इक्वेशन हम बनाते हैं तो क्या आ गया, ये j⍵c टर्म है वो R3 से मल्टीप्लाई हो गया है सिंपली, ओके। सो IC इज इक्वल टू I1 इंटू j⍵c R3। सो ये j⍵c इस टर्म से मल्टीप्लाई हो गया I1 इंटू R3 से, ओके। तो ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 3.38, जो पहला हम इक्वेशन कंसिडर करेंगे और जो हमें वैल्यू दे रहा है IC की, IC जो कि यहाँ पे फ्लो रहा है, ये रहा, ये हमें दे रहा है IC की वैल्यू। हमारे पास IC की वैल्यू भाई आ गई है यहाँ पे, तो IC की वैल्यू कितनी आ गई है, I1 इंटू j⍵c R3, ओके। नाउ दिस वैल्यू वी आर यूजिंग इन फ्यूचर इन दिस इक्वेशन, जहाँ जहाँ भी IC आएगा ये इक्वेशन की वैल्यू हम वहाँ पे यूज कर सकेंगे, ओके। नाउ पहला लूप तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, कौन सा, BCEB वाला, ये BCEB वाला हमने लूप कंप्लीट कर दिया है। नाउ वी विल सी फर्दर फॉर लूप ABEDA, ओके। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने दूसरा लूप कंसिडर किया है कि भाई लूप ABEDA, तो ABEDA यहाँ पे कहाँ पे हम देख लेंगे, ये रहा ABED और A, तो पूरा इतना सेक्शन हमने अब कवर किया है ये दूसरे लूप में, लूप ABEDA। तो इन बिटवीन कौन से कंपोनेंट्स आ रहे हैं हम देख लेंगे कि भाई R1 L1 आ रहा है, हाँ यहाँ पे स्मॉल वेरिएबल R1 आ रहा है जिसमें से I1 करंट फ्लो हो रहा है, फिर यहाँ पे नीचे जाएगा तो ये डिटेक्टर आ रहा है, फिर स्मॉल R1 आ रहा है, और इस ब्रांच में I2 एंड R2 कनेक्टेड है, R2 में से I2 फ्लो हो रहा है। तो अब हम E1 और E2 के लिए इक्वेशन यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप के लिए डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फॉर लूप ABEDA में हम I1 इंटू R1 स्मॉल R1 प्लस R1 प्लस j⍵L1, ओके। तो ये कौन से I1 जहाँ जिस कंपोनेंट से फ्लो हो रहा है उसके लिए हमने ये इक्वेशन लिया हुआ था। I1 स्टूडेंट देखते हैं कि कहाँ से फ्लो हो रहा है, तो सबसे पहले तो I1 ये ब्रांच में से फ्लो हो रहा है, तो हमने क्या कंसिडर किया कि भाई I1 इंटू ये जो स्मॉल R1 है वो, फिर इसका जो L, फिर आपका जो R आएगा, तो सिंपली I1 इंटू R1 है, ओके। I इसमें से पास होगा तो फिर L1 के लिए आपका इंडक्टिव ड्रॉप क्या होगा, j⍵L1 होगा। तो I1 यहाँ से पास हो रहा है तो अपना E1 का वोल्टेज ड्रॉप क्या है यहाँ पे, ये रहा I1 इंटू R1 प्लस बिग कैपिटल R1 प्लस j⍵L1, ओके। तो ये वोल्टेज ड्रॉप आपका हो गया ये ब्रांच A और B के बीच वाला, ओके। नाउ फर्दर इफ वी सी, नाउ अब हम कंसिडर करेंगे I2, वापस हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो I1 इज इक्वल टू I2 तो करना पड़ेगा कि भाई I1 यहाँ से फ्लो हो रहा है और I2 यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो I2 जहाँ से फ्लो हो रहा है उसमें कौन से कंपोनेंट आ रहे हैं, तो उसमें आ रहा है अपना पहला तो R2 आ रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आप इक्वेशन में देखेंगे कि भाई I2 इंटू R2 प्लस IC इंटू R। अब I2 के दो पार्ट वापस हमने देखे कि I2 के दो पार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे I2 यहाँ से IC इंटू R में भी जा रहा है, ठीक है। ये R में भी ये IC करंट फ्लो हो रहा है, वो कुछ कोई और नहीं लेकिन that is your current I2, okay। now this is your current IC that is flowing through this resistance, okay। क्योंकि हमने ये पूरा लूप कंसिडर किया हुआ है, कौन सा, ABED वाला,
तो फिर I2 यहाँ से फ्लो हो रहा है तो हमें ये वोल्टेज ड्रॉप भी कंसिडर करना पड़ेगा। फिर I2 यहाँ से फ्लो हो रहा है इन फॉर्म ऑफ IC, तो हमें ये वोल्टेज ड्रॉप भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि भाई ये वोल्टेज ड्रॉप तो I2 इंटू R2 आ गया, और ये वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया IC इंटू R। तो सिंपली हमने ये इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया है। तो ये इक्वेशन हमारा हो गया 3.39। ओके, सो ये इक्वेशन, इतने हमारे दोनों इक्वेशन आ गए। अब हम दूसरे लूप के लिए, दो लूप के लिए तो हमने काम कर लिया है। नाउ वी विल सी फॉर द लूप CEDC। ओके, सो फॉर लूप CEDC में क्या है स्टूडेंट्स, सो हम देखते हैं यहाँ पे, ये रहा आपका पॉइंट CEDC। तो अब हम काम करेंगे ये ट्रायंगल के लिए। ओके, हमने कौन से लूप कंसिडर किए, ये वाला एक कंसिडर किया है सबसे पहले, BEC, फिर हमने कंसिडर किया है BADEB। ओके, अब हम ये फोर्थ वाला फाइनली ये वाला लूप कंसिडर करेंगे ECD वाला। तो उसमें भाई आ रहा है C और D में I4 करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे वापस E और C में यहाँ पे IC फ्लो हो रहा है। तो कौन सा इक्वेशन आ रहा है हम देख लेंगे वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से। तो सबसे पहले हमने CEDC में क्या, IC कहाँ से फ्लो हो रहा है, एक तो स्मॉल r प्लस 1/j⍵c, क्योंकि वहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। ये रहा, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपका IC फ्लो हो रहा है, ये स्मॉल r। ओके, प्लस आपका ये सीरीज में हो रहा है, ये IC, ये यहाँ से सीरीज में फ्लो हो रहा है ये करंट। ओके, ये कैपेसिटर यहाँ से सीरीज में लगा हुआ है, तो सिंपली उसका एडिशन हो जाएगा। ओके, IC इंटू R प्लस 1/j⍵c। ओके, IC इंटू R प्लस 1/j⍵c। यहाँ पे IC को हमने कॉमन निकाल लिया है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आएगा आपका I4 इंटू R4। ओके, सिंपली यहाँ से तो आपका रेजिस्टिव ड्रॉप ही है, तो फिर ये पार्ट जो है C और D में, उसका तो I4 R4 ही आएगा। इसका हमने ये पूरा सीरीज में लगा हुआ है, तो उसको हमने क्या कर दिया, IC इंटू R प्लस IC इंटू 1/j⍵c, जिसमें से हमने यहाँ पे IC कॉमन निकाल लिया है। तो आपका भाई एक नया इक्वेशन यहाँ पे आ गया है। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि भाई IC इंटू R प्लस 1/j⍵c, ये तो वैसे का वैसा ही यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हमने I4 की वैल्यू रखी है I2 माइनस IC। तो अब I4 की वैल्यू यहाँ से I2 माइनस IC कहाँ से आ गई, दैट वी विल सी कि भाई हमने पहले ही डिफाइन किया था यहाँ पे कि फॉर हमारा अगर इफ वी वांट द ब्रिज बैलेंस ब्रिज, देन it is the condition I1 is equal to I3 and I2 is equal to IC plus I4। so इस IC को हम इस तरफ ले जाए तो I2 माइनस IC हो जाएगा I4 के लिए, तो वही वैल्यू I4 के लिए I2 माइनस IC यहाँ पे प्लेस की हुई है। ओके स्टूडेंट, सो डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे I4 के लिए I2 माइनस IC वैल्यू प्लेस की हुई है, और ये इक्वेशन हमारा हो गया 3.40। ओके, नाउ इफ यू सी फर्दर, पुट द वैल्यू ऑफ IC, मैंने आपको बोला था कि अब हम वैल्यू IC जो करंट है उसका यूज करेंगे हमारे इक्वेशन में। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ IC इन इक्वेशन 3.38 एंड 3.39। सो अब हम IC का वैल्यू अगर पुट करते हैं, IC का वैल्यू कौन सा है, हमने फाइंड किया हुआ था, ये रहा I1 इंटू j⍵c/R3। अब इसको हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 3.39 में। तो IC का वैल्यू अगर यहाँ पे मैं पुट करता हूँ I1 इंटू j⍵c/R3, तो सिंपली ये तो अपना टर्म वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे I2 R2 प्लस I1 इंटू j⍵c/R3 इंटू R ऐसा कुछ आ जाएगा। तो वही मॉडिफिकेशन किया है, देखिए ये पूरा टर्म वैसा ही है, और ये IC की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। ओके, नाउ अगर वापस वही IC की वैल्यू हम रख रहे हैं इक्वेशन नंबर कौन सा 3.39 में। ओके, सो ये वैल्यू यहाँ पे रख के 3.39 में ये वैल्यू आ गया। ओके, फिर इस टर्म को I इंटू j⍵c/R3 इंटू R को हम इस तरफ ले गए, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप यहाँ से I1 कॉमन निकालो, ये यहाँ पे I1 है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द I1। ओके, यहाँ पे लिखना रह गया है, लेकिन दिस इज यू हैव टू कंसिडर I1। ओके, सो इस I1 को, इस टर्म को इस साइड ले जाके I1 को अगर हम कॉमन निकाल ले, तो आपके पास क्या रह जाएगा, R1 प्लस j⍵L1, जो ये रहा। फिर ये वाला टर्म हम पूरा उस तरफ ले गए हैं,
तो उसमें से I1 कॉमन निकाल लिया है, तो कौन सा टर्म रहेगा आपके पास, जे ओमेगा सी आर थ्री इंटू आर, और आपका I2 एंड R2 तो यहाँ से यहाँ पे पहले है ही, दिया ही हुआ है। ओके, सो now I think up to this you are very clear for up to the 3.41. Okay, now further if you will see, this is the equation, that is I1 into j omega c r3, okay, into r plus divided by 1 upon j omega c is equal to I2 minus I1 j omega c r3 into r4. okay, so ये कौन सा है इक्वेशन, ये इक्वेशन ये वाला जो हमने यहाँ पे यूज किया है 3.40, उसमें हमने सिर्फ IC की वैल्यू पुट की है। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे IC की वैल्यू कौन से इक्वेशन में, एक तो 3.39 में पुट करने वाले थे, वापस 3.40 में पुट करने वाले थे। तो जब 3.40 में आप IC का वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज I1 इंटू जे ओमेगा सी आर थ्री, तो आपका इक्वेशन ये जो 3.40 है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे भी ये वैल्यू ही रख दिया, देखिए आपने I2 की जगह पे, यहाँ पे IC की जगह पे I1 इंटू जे ओमेगा सी आर थ्री ही रख दिया है। फिर जब आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू विल गेट द I1 इज कॉमन इन बिटवीन दैट, सेम प्रोसीजर जो यहाँ पे की गई है वहीं पे इसको I4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो भी टर्म आएगा उसको हम इस साइड ले जाएंगे। फिर बाद में I1 को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, जे ओमेगा सी आर थ्री इंटू आर प्लस जे ओमेगा सी आर थ्री आर फोर प्लस आर थ्री। ओके, फिर इज इक्वल टू I2 इंटू आर फोर। अगर आप इस R4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म को भी इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर I1 इंटू जे ओमेगा सी आर थ्री आर फोर, उसमें से R4 को आप रहने दो और दूसरा जो टर्म है उसको इस साइड पे ले लो, तो आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ ये जो इक्वेशन है 3.42 आ जाएगा। ओके, नाउ once we will get the equation 3.41 and 3.42, what we have to do for the balance condition, what we have to do for from equation 3.41 and 3.42, दोनों को हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया। देखिए सिंपली हमने इसको यहाँ पे क्या कर दिया है, कंपेयर कर लिया है। ओके, सो यहाँ पे I1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस ये जो पूरा इक्वेशन एज इट इज 3.41 वाला है और ये 3.42 वाला है, जिसमें I1 डिवाइडेड बाई R4 को सिर्फ यहाँ पे नीचे ले गए। तो इसमें कॉमन टर्म कौन सा रह गया कि भाई I1 अपना कॉमन टर्म रह गया है, ठीक है। फिर R2 को यहाँ पे ले लिया है, ये रहा R2 डिवाइडेड बाई R4। इस टर्म को हमने जैसे के वैसे यहाँ पे रख दिया है, वी पुट दिस टर्म एज इट इज ओवर हियर। ओके, सो फर्दर इफ वी सी R2 बाई R4, इस टर्म को भी कोई भी चेंजेस नहीं है, उसको भी वैसे ही नीचे ले लिया। ओके, नाउ यू कैन सी नाउ व्हाट आर द कॉमन टर्म्स इन बिटवीन दैट। सो नाउ इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स, अब हम रियल और इमेजिनरी टर्म्स को इक्वेट कर रहे हैं। ओके, तो भाई रियल टर्म कौन सा है, जो भी जे वाला टर्म है वो इमेजिनरी टर्म रहेगा और विदाउट जे वाला जो टर्म है वो रियल टर्म रहेगा। तो यहाँ पे हमने रियल टर्म को अलग कर दिया, तो भाई आपका स्मॉल r1 प्लस R1 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R4 इंटू R3 आ गया। तो अब अगर इक्वेशन में आपको R1 की वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो R1 इज इक्वल टू R2 इंटू R3 डिवाइड बाई R4 माइनस R1, इस R1 को हम इस तरफ ले आएंगे तो अपना हो गया इक्वेशन नंबर 3.43। ना फर्दर अब हम काम करेंगे इमेजिनरी टर्म के लिए। now if we are working for the imaginary term, so what are the imaginary term, that is j omega into L1 minus c R3R is equal to R2 R divided by R4 j omega c into R3 into R plus R4। ये रहा आपका इमेजिनरी टर्म का पूरा जो इक्वेशन है वो वाला। ओके, सो इसको अगर फर्दर आप इक्वेट करेंगे तो फॉर द L1 यू विल गेट द C इंटू R3 बाई R4 इंटू R4 plus R2 plus RT into R4। okay, so it is just you will get the equation number 3.44। okay, so ये आपका पूरा जो पार्ट है that is for the you can derive the equation for the balance your bridge। okay, now from through this equation what you have to do, you have to also draw the phasor diagram। okay, so ये phasor diagram आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि भाई how you will get the phasor diagram, how you will get this term, how this I1 is come over here and how you can find out this even value of E1, this is your value of E1, then
value of E2, so this is your value of E2. Okay, then E3, so it is your value of E3, and how your value of E4 is coming into the picture. How this phasor diagram is you can draw through the equation. Okay, so student, we will start to draw the phasor diagram now. Just a moment. Okay, so now we will start to draw how to we will draw this phasor diagram. तो सबसे पहले तो हमें phasor diagram draw करने के लिए number of equations चाहिए होंगे. So number of equations, that means हमें equations चाहिए होंगे कि भाई E1 का equation क्या है, then we will go for the what is the equation for E2, then what is the equation for E3, and what will be the equation for E4 to balance the bridge circuit. Okay, so हमारे पास जो सर्किट डायग्राम है उसमें से हम देख सकते हैं कि भाई E1 जो है, E1 इज इक्वल टू व्हाट, E1 इज इक्वल टू I1 इंटू R1 प्लस स्मॉल r1. ओके, प्लस I1 इंटू जे ओमेगा L1, क्योंकि I1 जहाँ भी फ्लो हो रहा है उसका हमें वोल्टेज ड्रॉप कंसिडर करना है. तो E1 के पार्ट में हमें इक्वेशन क्या आएगा, E1 इज इक्वल टू I1 इंटू R1 प्लस स्मॉल r1 प्लस I1 इंटू जे ओमेगा L1. नाउ वी विल मूव फर्दर. नाउ फॉर E2, हमारा E2 क्या रहेगा, E2 इज इक्वल टू I2 इंटू R2, क्योंकि सिंपली जो ब्रांच है हमारी इन बिटवीन A एंड D, वहाँ पे I2 फ्लो हो रहा है और I2 फ्लो हो रहा है, वहाँ पे हमने E2 कंसिडर किया है. तो E2 में E2 की वैल्यू क्या होगी, E2 इज इक्वल टू I2 इंटू R2. जो वोल्टेज ड्रॉप R2 में हो रहा है वो आपका E2 की तरह हम कंसिडर करेंगे. ओके, नाउ फर्दर अब है हमारे पास E3 की वैल्यू फाइंड करनी है. तो E3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर डूइंग फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ E3, वी हैव टू कंसिडर वेयर द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम, वेयर इज फ्रॉम R3. ओके, सो R3 में से I3 करंट फ्लो हो रहा है, तो E3 के लिए क्या आएगा भाई, I3 इंटू R3. सो R3 में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हम E3 के लिए कंसिडर कर रहे हैं. नाउ for the I3 into R3 we can also consider, that is I3 is equal to nothing but the I1 into R3, क्योंकि I1 करंट ही उसमें से फ्लो हो रहा है. ओके, सो फॉर I1 into R3, और I1 करंट दूसरा कहाँ पे फ्लो हो रहा है, सिमिलरली आपके कैपेसिटर में से फ्लो हो रहा है. तो अक्रॉस द कैपेसिटर आपका वोल्टेज ड्रॉप कितना रहेगा, दैट इज IC इंटू 1/J ओमेगा C. तो इतना आपका इक्वेशन क्या आ गया, आपका E3 का इक्वेशन यहाँ पे आ गया. तो E3 इज इक्वल टू आप कंसिडर कर सकते हैं IC इंटू 1/J ओमेगा C भी आप कंसिडर कर सकते हैं, और I3 इंटू R3 भी कंसिडर कर सकते हैं. ओके, नाउ फर्दर वी विल सी व्हाट इज द इक्वेशन फॉर E4. E4 के लिए हमें क्या कंसिडर करना है कि भाई आपका R4 में जो करंट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, दैट इज अ I4 इंटू R4. नाउ हमारे पास चार इक्वेशंस आ गए E4 के लिए, I4 E3 के लिए ये रहा, E2 के लिए और E1 के लिए. सो अब चार इक्वेशंस आ गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम क्या कर सकेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम अपना फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकेंगे. ओके, बट यू कैन सी E4 इज इक्वल टू I4 इंटू R4. अब I4 जो है आपका कैपेसिटर में से भी फ्लो हो रहा है, तो I4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर particularly this I4 we can write down, क्योंकि I4 आपका जो है वो आपका स्मॉल r में से फ्लो हो रहा है. तो IC इंटू R प्लस IC इंटू 1/J ओमेगा C. तो आप इस तरह से E4 की वैल्यू भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं. भाई आपका जो E4 है वो आपका स्मॉल रेजिस्टेंस R में से फ्लो हो रहा है, प्लस आपका जो कैपेसिटर है उसमें से भी फ्लो हो रहा है. तो E4 की जगह पे आप IC इंटू R प्लस IC इंटू 1/J ओमेगा C लिख सकते हैं. ओके, नाउ यू कैन सी फॉर E4 once again,
E4 is equal to IC into small r, ओके, प्लस E3। अब ये E3 कैसे हो गया, क्योंकि हमने आगे E3 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की हुई है, कौन सी, IC इंटू 1/j⍵c, ये वाली IC इंटू 1/j⍵c। और यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऐसा ही आ रहा है, IC इंटू 1/j⍵c, क्योंकि ये R4 जो है आपका कैपेसिटर में से भी फ्लो, ये R4 की जगह पे आप यहाँ पे IC इंटू 1/j⍵c कंसिडर कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे IC इन प्लेस ऑफ IC इंटू 1/j⍵c, यहाँ पे E3 आपका आ गया। तो इन प्लेस ऑफ E4 इज इक्वल टू I4 इंटू R4, फर्दर मॉडिफिकेशन इफ यू डन, यू विल गेट द IC इंटू R प्लस E3, ओके। सो E3 कहाँ से आ गया, ये IC इंटू 1/j⍵c की जगह पे हमने E3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। नाउ फर्दर यू विल व्हाट वी आर इंटरेस्टिंग टू फाइंड, वी आर ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I2 एज वेल। तो I2 क्या रहेगा आपके लिए, I2 इज इक्वल टू IC प्लस I4, ओके, फेजर सम ऑफ IC प्लस I4, इतना आपका I2 रहेगा, क्योंकि ये जो करंट है आपका यहाँ से फ्लो हो रहा है, इसलिए फेजर सम ऑफ IC प्लस I4 आपका क्या रहेगा, I2 रहेगा। और दूसरी एक कंडीशन क्या है कि भाई E1 is not equal to E2 and E3 is not equal to E4, ये दोनों कंडीशन भी आपको साथ में लेके चलनी है। E1 is not equal to E2 and E3 is not equal to E4, ओके। सो उसके लिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि भाई अपने फेजर डायग्राम को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम कौन सा E1 फाइंड करेंगे, ओके। तो E1 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई आपका जो I1 फ्लो हो रहा है, I1 को हम एज अ रेफरेंस यहाँ पे ले लेते हैं, ओके। सो आई विल जस्ट शो हाउ इट विल बी डन, ओके। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या ले लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डू, I am going to do over here current I1, so current I1 is flowing, उसको हमने एज अ रेफरेंस कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। फिर नाउ व्हाट इज द I1 यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आपका R1 प्लस स्मॉल R1, क्योंकि आपको A और B के ब्रांच में जो लगा हुआ है स्मॉल कैपिटल जो आपका रेजिस्टेंस है वो, और स्मॉल रेजिस्टेंस है वो, तो आपका वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप रहेगा। तो रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप क्या रहेगा, उसके फेज़ में ही रहेगा, इन फेज ऑफ I1। सो यहाँ पे मैं आपका वोल्टेज ड्रॉप कंसिडर कर दूंगा I1 इंटू R1 प्लस स्मॉल R1, ओके। सो आपका I1 करंट फ्लो होके जा रहा है रजिस्टर में, रजिस्टर के लिए है, तो उसके फेज़ में ही आप ये यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ फर्दर आप देखेंगे फिगर में, तो I1 आपका कहाँ से फ्लो हो रहा है, आपका इंडक्टिव ड्रॉप भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। नाउ व्हेन यू कंसिडर योर इंडक्टिव ड्रॉप, व्हाट यू हैव टू डू, इट इज़ 90 डिग्री leading, your inductive drop is 90 degree leading. So over here this is nothing but your inductive drop, that is you can consider as I1 into omega L1, this is nothing but your inductive drop, okay। तो यहीं पे आपका क्या आ गया है, यहाँ पे आपका आ गया है क्या, E1। so this is nothing but your E1, okay। now further you will go for the E2, और you can say for, और यहाँ पे आपका ये E1 आपने फाइंड कर लिया। अब आप क्या करेंगे कि भाई फर्दर आप फिगर में देखेंगे तो आप E3 के लिए कंसिडर करेंगे, ओके। नाउ फॉर द E3
what happened once again over here for the E3 is equal to I3 R3, ओके, जो हमने इक्वेशन में लिया हुआ है, ये रहा आपका E3, यू कैन सी E3 इज इक्वल टू I3 R3, सो वो भी आपका सेम I1 करंट के फेज में ही होगा क्योंकि रेजिस्टिव ड्रॉप है, ओके. So for the resistive drop you can see, you can consider over here, this is your I3 R3, okay, this is your E3 is equal to I1 into R3. अब आपको मिल गया है क्या, E1 और E3 मिल गया है, ओके. नाउ यू विल गोइंग फॉर द E4, और E4 के लिए आपने क्या इक्वेट किया हुआ है, E4 के लिए आपने इक्वेट किया हुआ है I4 इंटू I4, लेकिन आपका जो E4 है दैट इज़ पासिंग थ्रू द कैपेसिटर, ओके. अब कैपेसिटर में से पास हो रहा है तो कैपेसिटिव करंट भी आपका क्या रहेगा, यहाँ पे 90 डिग्री लीड करेगा. ये रहा आपका IC, ओके. नाउ कैपेसिटिव करंट आपका फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. तो फिर आप सिमिलरली आपका जो IC में वोल्टेज ड्रॉप होगा वो दैट इज़ योर IC डैश, ओके. नाउ इफ़ यू गो फॉर द E4, आपका E4 क्या है, E4 इज इक्वल टू I4 R4. तो सेम अगर आपको यहाँ पे फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है तो उसको आगे एक्सटेंड करिए, ठीक है. फिर यहाँ से आप यहाँ पे एक्सटेंड कीजिए तो इन बिट ये आपका क्या आ गया. फिर यहाँ से अगर आप पैरेलल में कंसिडर करेंगे, नाउ दैट बिकम्स योर E4, दैट इज नथिंग बट द I4 इंटू R4, ओके. सो दैट इज़ नथिंग बट द I4 इंटू R4, क्योंकि आपका I4 जो है वो भी E4 के फेज में ही आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि I4 ये रहा आपका I4, वो भी आप E4 के फेज में ही कंसिडर कर सकते हैं. दैट्स वाई E4 इज इक्वल टू I4 इंटू R4, ओके. नाउ फर्दर you can see now what we have the values, that is we have the values of E1, E4 and E3, okay. Now for the E2 what we have the equation for E2 is equal to what, E2 is equal to, over here you can see E2 is equal to I2 into R2, okay. So for finding out E2 what you have to do, you have to just consider over here, that is your phasor diagram. Just a moment. Now we are trying to find E2 over here, okay. अब E2 के लिए आपको क्या दिया गया है, मैंने अभी आपको दिखा है कि E2 के लिए आपको दिया गया है E2 is equal to I2 into R2, okay. Now E2 is equal to I2 into R2, but from that what you can see, now we have one more equation, that is I2 is equal to nothing but the phasor summation of IC plus I4, okay. IC plus I4 यहाँ पे आपको कहाँ पे मिलेगा, ये रहा आपका I4, this is your I4 and this is your IC, okay. Now for the phasor summation of IC plus I4, phasor summation of IC plus I4, that will leads you to the I2, okay. And I2 is equal to what, that is E2 is equal to I2 into R2. तो आप यहाँ पे अगर फर्दर ये लाइन एक्सटेंड करेंगे फॉर द, if you apply the parallelogram over here and extend this line up to this, okay, according to your I4, so this is your IC plus I4, you will get this IC plus I4 phasor diagram of IC plus I4. So for that value you will get your E2 as well. अगर यहाँ से एक लाइन यहाँ से हम एक्सटेंड करके, ये रहा आपका E2. now E2 is equal to nothing but I2 into R2. सो टोटल आपको कौन सा वैल्यू सब मिल गया है यहाँ पे, ये रहा आपका E1,
E2, E3 and E4. Now finding out the E, what you have to do for finding out the total E, just extend all this line at one particular point. ओके, ये रहा आपका E1, ये रहा आपका E2, दिस इज योर E4 and this is your, just a moment, E3, this is your E3. Okay, so over here you will find your total E. So that's how you can draw your phasor diagram with the help of these equations. Okay, so I hope you can understood very well your how to draw your phasor diagram as well. Okay, now we will move towards our uh, move towards the advantages of the Anderson bridge. So now from that equation you can see how we can draw the phasor diagram. Okay, so now after the phasor diagram we will see what will be the advantages of the Anderson bridge. Okay, so the advantages of Anderson bridges are: it can be used for accurate measurement of capacitance in terms of inductance. Other bridges require variable capacitor, but a fixed capacitor can be used for Anderson bridge. And the bridge is easy to balance from convergence point of view compared to Maxwell bridge in case of low values of key. So these three are the advantages of Anderson bridge, and what that next we will see what will be the disadvantages of Anderson bridge. So disadvantages of Anderson bridge, you can see it is more complicated than other bridges, uses more number of components. You can see in the circuit diagram it will be used the more number of components. Then balance equations are also complicated to derive. Bridge cannot be easily shielded due to additional junction point to avoid the effect to stray capacitance. So students, this is all about the equations forming for the Anderson bridge as well as the phasor diagram. So student, if this question is asked in GTO examination, so I hope you can easily write down this answer of this question with the help of this video uh, lecture. Okay, so thank you very much, student. So students, finally, as in every lecture, after completion of every lecture I will try to give you a message that please remember turn off the light when it is not required. Okay, so please save the energy, save the electricity. Thank you very much.